Hello students, so today we are going to start a new chapter of class 11 mathematics, that is complex number. See, till now whatever numbers you have studied up to class 10 mathematics falls under real number, whether it is negative, positive, rational, irrational, whatever numbers or even whatever numbers you have studied all falls under the category of real number. Now we are going to study complex number. But before going to complex number, let us try to understand what is the imaginary number. What is the imaginary number? See, imaginary number is such a number whose square is negative. We know that square of any number is positive, whether it is negative or positive. हमको पता है 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है. ऐसा कोई नंबर अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं क्लास 10 तक जिसका स्क्वायर करने से नेगेटिव है. तो इमेजिनरी नंबर वो नंबर है हुज स्क्वायर इज नेगेटिव. इसको क्या कहेंगे हम लोग? इमेजिनरी नंबर कहेंगे. ओके ओके, नाउ सी फॉर एग्जांपल, तो व्हाट इज द यूनिट? द बेसिक यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर इज I. It was first time devised by the great mathematician Euler. तो I is the unit of imaginary number. और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है √/-1. तो अब देखो I का वैल्यू √/-1 है, तो if we square it, तो I square will be what? -1. So if we square it, then what will happen? This square root sign will remove. If the square root sign will be removed, then what we can say? That I square is equal to how much? I square is equal to -1. Okay? So value of I square is how much? -1. Now if you want to go to any other powers, suppose let us study powers of I. Powers of I. Suppose I tell it I का power I cube. I cube कितना होगा? I square into I. तो I square is how much? -1 into I minus I. Okay? Now suppose I say I to the power 19. Any number. You can take any power. So it is an odd number. So you make it this way. 19 is an odd number. 9 2s are 18 plus 1. This is 1. -1 का power 9 into I. Now -1 to the power odd is -1 into I minus I. Okay? So I to the power 19 is equal to how much? Minus I. Similarly, if we can take any power, I to the power 250 is what? I square, this is an even number, 125 is equal to -1 to the power 125 is equal to -1. Sorry, -1. So we will see that whatever we take the powers of I, the answer will be either 1, -1, I or -I. Whatever power we take. Okay, if we take I to the power 4 is what? 1, I to the power -1, I square is -1. तो जो भी तुम पावर लोगे I का आंसर क्या होगा? यही रहेगा. Now ये तो हो गया I. I is what? The basic unit of a complex number. Imaginary number. यूनिट. जैसे हम लोग का नॉर्मल मैथ काउंटिंग में 1 इज द यूनिट, यहाँ पे I इज द यूनिट. अब देखो ये तो हो गया. नाउ तो एनी इमेजिनरी नंबर इज ऑफ द फॉर्म, सपोज I say Ni. Any, please note it down, any imaginary number is of the form Ni, where N is a real number. Where N is what? A real number. So any imaginary number is of the form Ni where N is a real number. Okay, suppose I say 5i. So actually 5i means what? -25. Or if you can, -36 is what? 6i. -49 is what? 7i. So this is the way of writing the complex numbers. Okay, imaginary numbers. So ये हो गया powers of I. Let us do one sum on the powers of I, and then we will move to the what is complex number and see the subtraction and addition of complex number. Okay. So we are
moving to the powers of I. Okay, now see, so let us do one sum on based on the powers of I. See, first sum for today, 2I square plus 6I cube plus 3I to the power 16 minus 6I to the power 19 plus 4I to the power 25. Okay, this question is given and they have asked to find the simple value of this expression containing I. Okay, now how to do it? See, this is odd, even, odd, even, odd, odd. So best is what? You write this way. 2I square, okay, leave it. 6I square into I, 3I square whole to the power 8 minus 6I square whole to the power 9 into I plus 4I square whole to the power 12 into I. Okay, I think this is clear. Okay, this step is simple, indices. Now wherever there is I square, you do one thing, put minus 1. So it will become what? 2 into minus 1, minus 2. It will become what? Minus 6 into I, minus 6I. See, minus 1 का यहाँ पे इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3, आई भी नहीं है, माइनस माइनस 6 प्लस 6I, और ये क्या है? ये भी प्लस 4I. ओके, I square minus 1 even power is 1, minus 1 odd power is minus 1. अच्छा, तो this cancelled. Now 3 minus 2, 1 plus 4I. So what we are getting? 1 plus 4I. This is the answer of the first sum. Okay? अच्छा, so now we are going to see what is a complex number. Please note it down. A number in the form of a plus or minus ib is called a complex number. Complex number किसको कहते हैं? A number in the form of a plus minus ib, where a and b are real, where a and b are real numbers and I is equal to root over minus 1. So we are writing a plus ib. So this part, let us denote this complex number by z. Okay, let us denote by this complex number by z. You study in higher classes that this complex number are actually points in the plane. As you studied the coordinate plane, Cartesian plane, so there is one Argand plane. These are actually points. So these are points. So z is a point and this z is equal to a plus ib. So this a is called, we denote it REZ, means real part of z. RE means real part of z, and this is called the imaginary part of z. Imaginary part of z. So a complex number has two parts, real part and imaginary part. If in the complex number this real part is 0, then we will say it is purely imaginary. And if the complex number imaginary part is 0, then we will say it is purely real. So it is not necessary that it should have both the part. It can have both the part or any either of them. Okay. So we can say that all real numbers are complex number. Suppose we can say 5 is equal to 5 plus 0. Yes, it can be that. Okay. Because the that is a purely real, because the imaginary part is 0. So a complex number is this thing. Achha, now we are moving to the next sum. Let's see how to do the next sum. Question number 2. Question number 2. Express in the form of a plus ib.
express in a plus ib. What is the question? 1 minus I by 1 plus I whole square. This you have to write in the form of a plus ib. Okay, now see how to do it. So this one, let us try to split up. So what will I get if I apply the formula of a minus b whole square? So a minus b whole square 1 square plus I square minus 2 into 1 into I, and here I will get 1 square plus I square plus 2 into 1 into I. Same thing. Now you know that 1 square is 1 and I square is minus 1. Here also you know 1 square is 1, I square is minus 1. तो क्या मिला हमको? ये 1 1 कट गया, क्या मिला? माइनस 2i बाई प्लस 2i मतलब माइनस 1. तो माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस आई बी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? माइनस 1 प्लस 0i. ओके, तो इस माइनस 1 को कैसे लिखेंगे a प्लस आई बी फॉर्म में? माइनस 1 प्लस 0i, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल है. इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 होगा. ओके, अच्छा. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर? ओके, एक्चुअली आई टोल्ड यू ना, let us try to take a deep insight of this part. Suppose this is a point. I told you that every complex number is actually a point in the plane. This complex plane is called Argand plane. This is not in our syllabus, but still I am giving you some information about this. तो suppose यहाँ पर कार्टेशियन के हिसाब से यहाँ पर एक पॉइंट है AB. ठीक है, मान लो कार्टेशियन प्लेन जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं उसके हिसाब से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? AB. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से उसका वैल्यू क्या बन जाएगा? a प्लस IB. क्या बन जाएगा? a प्लस IB. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है AB, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा? a प्लस IB. सपोज ये 2 3 तो 2 प्लस I3 3i. मान लो ये माइनस में है B, तो कोई बात नहीं, माइनस में आ जाएगा. ठीक है, तो दैट डजंट मैटर. तो दिस इज द थिंग. Now, okay, now this is origin and this is the point P whose complex number is this. So actually what we are going to see, modulus means what? Modulus is what? Length of OP. Modulus is actually what? Length of OP. Now how to find the length of OP? अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट लगाएं तो हम बोल सकते हैं कि इतना दूर क्या होगा? B होगा और इतना दूर A होगा. तो अगर सिंपल सी बात है, बाय सिंपल पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से इट इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, OP स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो OP क्या बन जाएगा? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसी को क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर मॉडुलस निकालना है तो इतना कुछ डायग्राम करने की जरूरत नहीं है. क्या करोगे? एग्जांपल तुमको दे दिया z इक्वल टू -2 प्लस 3i. ठीक है, तो मॉड z क्या होगा? कुछ नहीं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, बस दैट्स ऑल. तो 4 प्लस 9 कितना आ गया? 13. हो गया, काम खत्म. तो ये हो गया ऑल अबाउट मॉडुलस, लेंथ ऑफ दिस पार्ट. अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा? एम्पलीट्यूड क्या होता है? अब देखो, ये जो ओपी लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ में एक थीटा बना रहा है, एंगल थीटा. तो वो जो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द एंगल. कौन सा एंगल? द एंगल बिटवीन द ओपी एंड द, क्या है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो ये एंगल को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड. तो एक्चुअली इसमें हम लोग एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो हम लोग यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? b बाई ए. ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? b बाई ए. देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर बाई बेस. तो tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए हो गया, इज इक्वल टू, या फिर इसको b का मतलब क्या बोल सकते हो तुम लोग? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाई रियल पार्ट ऑफ z. ओके,
तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड। उसके बाद देख लेंगे थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर यहां पे चूंकि tan है, अगर tan थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या थर्ड में लाई करेगा। अगर tan थीटा नेगेटिव है तो वो सेकंड में लाई कर सकता है या फोर्थ में लाई कर सकता है। वो हम देख लेंगे साइन कॉस में क्या पॉजिटिव दिया हुआ है। ओके, तो दिस वे वी कैन एक्सप्रेस, वी कैन फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चले आते हैं सम में। फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ, तो अगला क्वेश्चन जो भी नंबर है हम लोग का, फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ -1 प्लस आई। तो पहला क्वेश्चन ये हम लोग ले लिए कि फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ -1 प्लस आई, बोला इसका मॉडुलस भी फाइंड बताओ, एम्पलीट्यूड भी बताओ। तो कोई बात नहीं, मॉड जेड क्या होगा, मैंने क्या कहा था, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट के साथ आई के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो, तो ये आ गया √2। ओके, अब रहा बात ठीक, तो लिखो लेट थीटा बी द एम्पलीट्यूड। तो tan थीटा क्या होगा, मैंने क्या कहा था, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है, 1 बाई -1। तो देखो जब भी tan थीटा नेगेटिव है इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसको लिख देना क्या, पाई माइनस tan इनवर्स 1। अब हम लोग tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan 45 कितना होता है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद समझ में आ जाएगा। तो पाई इज एक्चुअली 180 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है एट दिस। अभी जब ये चीज तुम लोग समझ में नहीं आएगा, जब 11 का ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। एक्चुअली इन क्लास 10 वी हैव डन ट्रिग्नोमेट्री अप टू 90 डिग्री, बट इन क्लास 11 जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे देखेंगे वहां पे 360 डिग्री तक एंगल का ट्रिग्नोमेट्री होता है, इवन मोर देन दैट। तो ये पाई माइनस पाई मतलब 135 डिग्री। तो tan 1 फॉर द टाइमिंग कीप इन माइंड, tan 135 इज इक्वल टू -1। ओके, अच्छा एक सम और करते हैं, मॉडुलस फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड के ऊपर एक और सम करते हैं। ओके, तो आई थिंक यू आर मेकिंग द नोट ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज बीइंग शोन। फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द, क्वेश्चन क्या है मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे इंस्टेंटली। Find the modulus and amplitude of 1 plus 2i whole square plus 2 plus 3i 2 plus 3i whole square। अच्छा, अब इसको ब्रेक करो। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो जब भी तुमको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे मॉडुलस एम्पलीट्यूड निकालने का, उसको पहले a प्लस आई बी फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। इसको पहले क्या लिखेंगे, 1 माइनस 4 प्लस 4i, ये क्या होगा 4 माइनस 9 प्लस 12i। तो ये कितना है, -4 प्लस 4 कट गया तो क्या आया, -8 प्लस 16i हो गया। तो ये हो गया z। तो इसको हम लोग क्या किए, a प्लस आई बी फॉर्म में ला दिए बाई अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। उसके बाद जो सिंप्लीफाई कर दिए। अब देखो, अब मॉड z क्या होगा, मॉड z का मतलब -8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो 8 का स्क्वायर ये क्या है, 8 इंटू 2 का होल स्क्वायर, मतलब आएगा 8√5। ठीक है, 8√5 यूनिट्स। ये क्या आया, ये हो गया मॉड z का मतलब। अच्छा, अब लेट थीटा बी द एम्पलीट्यूड। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो 16/8 -8 -2। अब tan -2 तो हम लोग किसी टेबल में आता नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स 2। ठीक है, पाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा नेगेटिव है और tan इनवर्स 2 जो भी होगा पाई माइनस दैट डिग्री, तो दैट विल गेट द एम्पलीट्यूड। ओके ओके, नेक्स्ट सम। इफ x and y, फाइंड x and y। ओके, देखो फाइंड x and y। क्वेश्चन है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू √3 माइनस i√2 बाई 2√3 माइनस i√2। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो, अब इसमें करना क्या है, हम लोग इसी में स्टार्ट कर दे रहे हैं।
इसको यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि इसको भी तुमको a प्लस आई बी फॉर्म में ले आना है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको a प्लस आई बी फॉर्म में ले आना है। हाउ टू डू दैट? वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो कैसे करेंगे? 2√3 प्लस i√2, 2√3 प्लस i√2। देखो एक फॉर्मूला याद रखना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है सबको पता है, हम ये फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, ये तुम लोग बहुत पहले से जानते हो। लेकिन अगर a प्लस आई बी और a माइनस आई बी हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो मैं क्या फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं कि टेक दिस इनसाइड, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया? तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों प्लस बन जाएगा? क्योंकि i का जो स्क्वायर कितना होता है? -1, और फॉर्मूला का -1, ये दोनों मिलकर क्या बना देगा? प्लस। कोई चीज हम लोग यहाँ पे, अच्छा बिफोर दैट मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू रूट थ्री, तो ये हो गया 6 प्लस i√6 माइनस 2i√6, और ये क्या बन गया? माइनस आई स्क्वायर के लिए -1√2, √2 का स्क्वायर 2, तो आई स्क्वायर इंटू 2, और नीचे में क्या आएगा? 2√3 का स्क्वायर कितना होता है? 4 3 या 12 प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो ये 6 और यहां पे +2 हो रहा है, तो ये क्या बन गया? 8 माइनस i√6 बाई 14, x प्लस आई बाई। ठीक है, अब तुम लोग कंपेयर कर लेना। तो x का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज x? 8/14, मतलब पता है कट के कितना मिलेगा? 4/7, और y इज इक्वल टू √6 माइनस √6/14। तो प्लीज नोट इट डाउन बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट सम। Okay, now we are moving to the next sum. Before moving to the next sum, we are doing one more sum based on this rationalizing the denominator. Okay, देखो एक सम इसके ऊपर और है। क्वेश्चन है, if a plus ib equal to p plus iq, a plus ib is equal to, if a plus ib is equal to, sorry, a plus ib by c plus id equal to p plus iq, then prove that one number a square plus b square by c square plus d square equal to p square plus q square, और 2 नंबर क्या होगा? a माइनस आई बी c माइनस आई डी इक्वल टू p माइनस आई क्यू। ये क्वेश्चन है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन को यहां फिर से एक बार लिख लो। क्वेश्चन लिख लिया, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट को लिखो, लिखने के बाद लिखना टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड में क्या हो जाएगा? चलो यहीं पे कर दे रहे हैं, यहां पे मॉड आ जाएगा, यहां पे मॉड आ जाएगा, यहां पे मॉड आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन आई हैव स्टार्टेड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन को फिर से कॉपी किए, उसके बाद लिखे टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, मतलब मॉडुलस ऑन बोथ साइड। ये हो गया। अब मॉड एफ, क्योंकि रूल क्या है? मॉड ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉड z1 बाई z मॉड z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड फॉर्म में है तो उसका मॉड मतलब अलग अलग मॉड ले सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे का मॉड मतलब इसका मॉड व इसका मॉड। ओके, अब आते हैं सब में। तो इसका मॉड क्या होगा? पता है हम लोग का फॉर्मूला, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई नहीं लेना है, जब इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे तो आई को छोड़कर याद रखें, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हो गया। अच्छा नाउ अब क्या करना है हम लोग को? अब हमको पहला पार्ट प्रूव हो गया, देखो सिंपल से। अब सेकेंड पार्ट, अभी हम लोग क्या बोले थे कि a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आ रहा है?
तो इस a प्लस आई बी ए स्क्वायर प्लस बी की जगह लिखो क्या, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, और यहां पर क्या लिखोगे, c प्लस आई डी सी माइनस आई डी, अब ये क्या होगा, p प्लस आई क्यू p माइनस आई क्यू। ओके, समझ आ गया, उल्टा रिवर्स, इसके जगह पर ये लिख रहे हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर ये, दिस आइडेंटिटीज। अच्छा हो गया। अब देखो करना क्या है, अब ये जो क्वांटिटी मिला, ये इसका वैल्यू क्या होता है, क्या दिया हुआ है, इसके जगह पर ये दिया हुआ है p प्लस आई क्यू, तो यू जस्ट रिप्लेस दिस बाय p प्लस आई क्यू, p प्लस आई क्यू एंड कीप इट एज इट इज, a माइनस आई बी बाई c माइनस आई डी इक्वल टू p प्लस आई क्यू p माइनस आई क्यू। तो ये और ये टर्म कट गया, बचा क्या, ये इक्वल टू ये हम लोग को प्रूफ करना था। ओके, तो इन दिस शॉर्ट वीडियो आई हैव गिवन just a brief description of complex number and some sums. In the second video we will deal with complex cube root of unity and how to find the square root of complex number.